Good evening, everyone. Welcome in SS Medical Classes. I am Dr. S.P. Singh, Senior Consultant Dermatologist, Pilibhit Bypass Road, Bareilly. Today, there is no age limit of the heart attack. Heart attack or myocardial infarction are occurring in youngsters age 20 to 28 years. In old time, the time of heart attack was after the age of 45 years, but today there is no age limit. So there must be some reason of this. There must be some reason of this. I think the most common reasons are lack of knowledge कि what should eat and what should not eat. हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है. And second reason is our lifestyle. There is no ना ही सोने का कोई समय फिक्स है ना ही जागने का कोई समय फिक्स है. जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब physical है. activity or exercise. And the other reasons are smoking or excess intake of alcohol along with smoking. So today I will focus my lecture on trans fatty acid, which is poison, strongest poison to cardiovascular system, and which is most common cause of strokes, cerebrovascular accident, severe or any strokes or heart attack or myocardial infarction. So today I will discuss trans fat. What are the foods which contain trans fat and what is the effect on human health. So as I told that I am Dr. S.P. Singh, Senior Consultant Dermatologist. If any my listener have any skin problem, then he may consult and he may call me on the number which is given on the screen. So before understanding trans fats, we will discuss some of the important facts. Why should take fat? We should take fats or we should take zero fat. Yeah, we should not take fat at all or we should take fat. And what is the importance of fats in our body? As you know, the fat constitutes 60% of our body. So why weight our body is 60% fat? And what is the function of fat? Fat is most concentrated source of energy and along with essential fatty acids. And these essential fatty acids are required for the synthesis of hormone and prostaglandins. And fats also acts as a carrier for many fat soluble vitamins and make our food more palatable. And fats are vital for the development of brain and function. And the fats are also provides insulation for the heat loss. If there is very less amount in fat in anybody, then he will lose heat more rapidly. So the fats act as a insulating substance in our body and are needed for the maintenance of temperature. Now what amount of fat we should take? So we should take fat in such a amount that it will provide 30% of the calories which we need. तो जितनी कैलोरी हमें चाहिए होती है उसकी 30% कैलोरी हमें फैट से मिलनी चाहिए. अगर हम इससे ज़्यादा फैट लेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी हायर इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. एंड अकॉर्डिंग टू recent rules or recent guidelines or recent recommendations, we should take no trans fat. We should take minimum saturated fatty acids in a day, that is less than 10 gram in a day. And we should take fats, we should take food which contain omega-6 fatty acid. So all these should be kept as low as possible. इसमें ट्रांस फैट तो जीरो रहने चाहिए और लेस देन 1 रहने चाहिए % in a day. And saturated fatty acids and omega-6 fatty acid intake should be kept as low as possible.
glycerol. Chemically, fats or oils are triesters of glycerol. So, fats are those triesters of glycerol which are solid at room temperature and contain saturated fatty acids, and then stability is more. And oils are those triglycerides or triesters of glycerol which are liquid at room temperature and they have more unsaturated fatty acids and their stability is low as compared to fats. What is the chemical structure of lipids, that is oils and fats? So chemically oils and fats are triesters of glycerol. They are triesters of glycerol. क्या मतलब है इस चीज का? What is mean? Oils or fats, that is lipids, are formed by one molecule of glycerol plus 3 molecule of fatty acids. So we can see in this diagram, this is glycerol which has 3 carbon, 1, 2 and 3, and these are the 3 hydroxyl group which are present in this glycerol, and this glycerol is basically propane 1, 2, 3 all, यानी कार्बन नंबर 1, 2, 3 all, is it? So 3 all means 3 hydroxyl group attached to respective carbon. So this is glycerol, and R1 COH, R2 COH, R3 COH, these are 3 fatty acids, 1, 2 and 3 fatty acids. So oils or fats are formed by the one molecule of glycerol plus 3 molecule of fatty acids. तो fatty acids क्या हैं? Fatty acids OH, OOC and R1. तो this R1 is क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन. किसकी? फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन है. दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन. इसको हम एलिफेटिक टेल भी कहते हैं. दिस इज एलिफेटिक टेल and this is hydrophobic, and this R1 and R2 and R3 may be same or may be different. If these are same, then these fatty acids will be same, because the nature of fatty acids depend on R1, R2 and R3, and carboxylic acid is same. So we can say that fatty acids are a special type of carboxylic acid. If R1 and R2 and R3 are same, then these are named as simple triglycerides. इनको कहते हैं simple triglycerides. If these are different, then they are known as mixed triglycerides. So lipids, that is oil or fats, also known as triesters of glycerol or triglycerides or triacyl glycerols. There are 3 names. When one molecule of glycerol combines with 3 molecules of fatty acid, then there is a formation of 3 molecule of water which is released in the reaction, and there is a formation of 3 ester bond. That is why it is known as triester of glycerol and fatty acid. In the formation of 3 molecules of water, 3 hydrogen atoms are taken from the glycerol and 3 OH group are taken from the fatty acid, one from the each. क्या होगा? इसमें से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा. Now look into this diagram. This is structure of fatty acids. अब इसको हम ये देखेंगे तो ये जो एंड है, ये चैन है हाइड्रो, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड इसको हम कहेंगे इसमें अल्फा एंड. क्या बोलेंगे? अल्फा एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक. सो दिस इज कार्बन नंबर 1. ये कार्बन किसका है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है. ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 and 17 and लास्ट में क्या है 18. दिस इज मिथाइल ग्रुप एक्चुअली, दिस इज मिथाइल ग्रुप. एंड इसमें क्या है, ये कार्बन है और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर है. CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH. अब इसका जो ये वाला एंड है, दिस इज नोन एज मिथाइल एंड, दिस इज नोन एज मिथाइल एंड, आल्सो कॉल्ड एज ओमेगा एंड, ओमेगा एंड. So we should look this fatty acid and this is carbon. अगर हम मिथाइल ओमेगा एंड से गिनना काउंट करना शुरू करेंगे तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6. So sorry, this is not alpha linolenic acid, this is gamma, this is gamma linolenic acid, gamma linolenic acid. So आप ये देखेंगे कि कार्बन नंबर 6 हम इधर से काउंट कर रहे हैं कार्बन की मिथाइल ग्रुप या ओमेगा ग्रुप से, कार्बन नंबर 6 और 7 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब जहाँ कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें हाइड्रोजन का एक ही एटम अटैच होगा. तो अगर इस हाइड्रोजन का एटम एक साइड में यानी चैन के एक साइड में ये एटम अटैच है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ ना होके एक तो यहाँ पे है और दूसरा हमारे इस साइड में अटैच हो जाए, अपोजिट साइड में अटैच हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक नीचे और एक ऊपर, इसे बोलेंगे ट्रांस, ट्रांस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसे बोलेंगे ट्रांस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो इन दिस गिवन स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स देयर इज ए सिस यानी हाइड्रोजन एक ही साइड में है, सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड between carbon number 6 and carbon number 7. So this is called omega 6 fatty acid. काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ओमेगा एंड से करेंगे. दूसरा, यदि हम IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम करना है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर 1 मानेंगे और बाकी सबको और वहाँ से काउंटिंग करेंगे. तो अब इसमें देख रहे हैं सिस 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 यानी 3 डबल बॉन्ड है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 और 7 के बीच है, अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं 8 9 9 और 10 के बीच में है तो 6 9 और 11 12 12 के बीच में है तो 6 6 6 6 9 12. और कितने कार्बन है इसमें एटम, कितने कार्बन एटम है 18, तो और 3 को बोलेंगे ऑक्टा डेका, ऑक्टा डेका. और डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्राई, 3 है डबल बॉन्ड, ट्राई इनोइक एसिड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं 3, तो इसमें है ट्राई इनोइक एसिड. सो दिस इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव 3 डबल बॉन्ड. एंड दिस इज, यदि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये क्या कहलाता, सैचुरेटेड फैटी एसिड. सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स which contain no carbon carbon double bond. If any fatty acid contain carbon carbon double bond only one, this is or more than one, then this is called unsaturated fatty acids. If carbon carbon double bond is 1 in number, then it will be called as MUFA. MUFA means mono unsaturated fatty acid, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है 1 है. And if you contain more than 2 or more than 2 carbon carbon double bond, then it will be called as PUFA. PUFA means poly unsaturated fatty acids, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे होंगे, सब सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं नेचुरली, और ये ट्रांस में तब तक नहीं चेंज होंगे जब तक कि कोई इन पे प्रोसेस नहीं किया जाएगा. तो नेचुरली ट्रांस फैट्स आर नॉट नेचुरली अकरिंग, दे आर फॉर्म्ड ओनली बाय सम प्रोसेस. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो poly unsaturated fatty acids contains
more than 2 or 2 carbon-carbon double bonds, and double bonds, these are cis double bond, and these fatty acids are called cis fatty acids, cis fatty acids. और जिस फैट या ऑयल यानी जिस लिपिड में ये सिस फैटी एसिड्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? सिस फैट। और जिसमें ये ट्रांस फैटी एसिड होते हैं उसे बोलेंगे ट्रांस फैट, ट्रांस फैट। सो नाउ लिख दिस इज गामा लिनोलेनिक एसिड। भाई अब इसको देखेंगे कि क्या है ये। दिस इज मिथाइल ग्रुप, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसी है? एक ही साइड में, यानी ये बॉन्ड कैसा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसा है? सिस, सिस डबल बॉन्ड। सो अगर हम मिथाइल एंड से अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें, मिथाइल एंड से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, मिथाइल एंड आल्सो कहा जाए ओमेगा एंड, ओमेगा एंड, और दिस इज एंड कॉल्ड अल्फा एंड। तो अगर ये हम इधर से काउंटिंग करना शुरू करें तो कार्बन नंबर 6 और 7 के बीच में क्या है? हमारा सिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सो दिस इज कॉल्ड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अगर किसी में 3 में होगा तो हम उसमें कहेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर दिस डबल बॉन्ड हमें 9 और 10 के बीच में, हम उसे कहेंगे ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। सो ओमेगा 6 के एग्जाम्पल है गामा लिनोलेनिक एसिड, एंड दिस इज एंटी इंफ्लेमेटरी। दिस इज ओनली ओमेगा 6 फैटी एसिड विच इज एंटी इंफ्लेमेटरी। बाकी जितने भी ओमेगा 6 वाले हैं, इफ दे आर in higher amount then they induces inflammation in the body, except this omega 6 fatty acid which is called gamma linolenic acid. And so alpha linolenic acid is a alpha linolenic acid is a omega 3 fatty acids। क्या है? omega 3 fatty acids है, omega 3 fatty acids। and it is anti inflammatory। अब अगर इसको देखें हम कि अल्फा बीटा गामा का क्या चक्कर है, तो ये जो कार्बन है, द कार्बन जो हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है, इसको कार्बन नंबर 1 बोलेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कार्बन होती है उसको हम अल्फा बोलेंगे, और उसके जो नेक्स्ट है उसे हम बीटा बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है उसे अल्फा बीटा गामा बोलेंगे, और लास्ट में जो कार्बन होती है सबसे लास्ट में उसे हम क्या बोलेंगे? ओमेगा। क्योंकि इन लैटिन लैंग्वेज द लास्ट, in Latin language alphabet started from the alpha and ends at the end omega. Omega is the last letter, so last carbon will be omega carbon or omega end, and from this carbon number the first cis carbon carbon double bond is present, then omega number is given, that omega number is cis given. carbon If carbon omega double number bond is present present between third and fourth carbon atom, then it is omega 3 fatty acid. If it is present between 6 and 7, then fatty acid will be omega 6 fatty acid, and if it is present between 9 and 10, then it will be present, it will be called as omega 9 fatty acid. What is trans fat? Trans fat means lipid which contains trans fatty acids, trans fatty acids। ऐसा लिपिड मीन्स ऐसा फैट और ऑयल जिसमें क्या होगा? ट्रांस फैटी एसिड होंगे। ट्रांस फैटी एसिड का मतलब जो एलिफैटिक चैन है, एलिफैटिक टेल यानी हाइड्रोकार्बन चैन, हाइड्रोकार्बन चैन, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे होंगे? एक हाइड्रोजन एक साइड में, दूसरी हाइड्रोजन दूसरी साइड में। तो दिस टाइप के जो डबल बॉन्ड होते हैं इसे क्या बोलते हैं? ट्रांस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और जिस फैटी एसिड में ये होते हैं उसे कहते हैं ट्रांस फैटी एसिड, और जिस फैट में ये ट्रांस फैटी एसिड होते हैं उसे कहते हैं ट्रांस फैट। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स।
तो on the basis of number of carbon atoms present in aliphatic tail और हाइड्रोकार्बन चैन कितने टाइप के होंगे? नंबर 1 शॉर्ट चैन फैटी एसिड्स, इसमें द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एलिफेटिक चैन इज आइदर 5 और लेस देन 5. नंबर 2 मीडियम चैन फैटी एसिड्स, द नंबर ऑफ carbon atom is 6 to 12. And third is long chain fatty acids, number of carbon atom from 13 to 21. And very long fatty acids, number of carbon atoms either 12 either 22 or more than 22. So on the basis of number of carbon atoms they are short chain fatty acid, medium chain fatty acid, long chain fatty acids and very long chain fatty acids. Now on the basis of दूसरा क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड का, on the basis of presence or absence of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो ये किस टाइप के होंगे? इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट एब्सेंट, अगर इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एब्सेंट देन यानी नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, then saturated, then fatty acids are known as saturated fatty acids. And if carbon carbon double bond present, then fatty acid is known as unsaturated fatty acids. जो unsaturated fatty acids हैं, it may be mono unsaturated fatty acids यानी म्यूफा और poly unsaturated fatty acids. If carbon carbon double bond is only one, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 और more than 2. So polyunsaturated fatty acids may be cis fatty acid or may be trans fatty acid. cis fatty acid का मतलब है, cis fatty acid का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम attached on the same side. cis fatty acids. तो cis fatty acids कैसे होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड fatty acids होते हैं containing कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, containing कार्बन कार्बन cis डबल बॉन्ड्स. एंड ट्रांस फैटी एसिड्स कौन से होंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैव हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन on the both side of the chain. This is called trans fatty acids. Trans fatty acids. ये कैसे होंगे? Unsaturated fatty acids होंगे ये भी. What इनकी इस प्रॉपर्टी से ये बॉन्ड कैसा बनता है? जो बॉन्ड बनता है ये चैन होती है लीनियर हो जाती है, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है. तो ट्रांस फैटी एसिड्स आर लीनियर एंड cis fatty acids are kink or bend होंगे. Due to this property, these are not closely packed. Hence, any lipid which contains cis fatty acids is liquid at room temperature. Liquid at room temperature, cis fatty acids, because of there is no close packing. They are not closely packed. And any lipid containing trans fatty acids is solid at room temperature, because being linear they are closely packed. And so this is all about cis and trans fatty acids. So first on the basis of chain, and second is presence or absence of
presence or absence of double bonds. And third is, suppose if first carbon carbon double bond is present, CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2, मान लीजिए कोई 2 3 4 5 है, 5 और 6, इसमें कितने कार्बन चेन है 6, तो ये कैसे हो गया, दिस इज मीडियम चेन फैटी एसिड, हो गया, क्योंकि शॉर्ट में कितनी आती है 5 और लेस देन 5, 6 और 12 के बीच में कितना आता है मीडियम चेन फैटी एसिड्स, एंड 13 से 21 कितना आता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और 22 और मोर देन 22 कितना आएगा वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो दिस इज मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ये दिस इज मिथाइल एंड दिस इज अल्फा एंड, या मिथाइल एंड को हम कहते हैं ओमेगा एंड, क्या कहते हैं ओमेगा एंड, तो हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3, तो हमारा बॉन्ड कहाँ पे है, ये बॉन्ड है हमारा कार्बन नंबर 3 पे, तो इसे कहेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो थर्ड क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो फर्स्ट हमारा सिस बॉन्ड है वो यदि हम मिथाइल एंड से या ओमेगा एंड से काउंटिंग करते हैं तो किस कार्बन नंबर पे है, तो यदि कार्बन नंबर 3 पे है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कहलाएगा, 6 पे है तो ओमेगा 6 फैटी एसिड कहलाएगा, 9 पे है तो ओमेगा 9 फैटी एसिड कहलाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फैटी एसिड। फैट, अब हमारे टाइप्स ऑफ फैट्स कितने टाइप के होंगे, फैट्स पे आ जाते हैं। अभी तक तो हमने फैटी एसिड के बारे में जाना, सिस फैटी एसिड के बारे में जाना, ट्रांस फैटी एसिड के बारे में जाना, अब फैट्स के टाइप। तो सेचुरेटेड फैट्स का मतलब है कंटेंट सेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दीज सेचुरेटेड फैट्स आर odorless and solid at room temperature, I told you, and have high smoke point. स्मोक पॉइंट की मीन्स जब हम किसी ऑयल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, व्हेन वी हीट एनी ऑयल देन देयर इज ए स्मोक फॉर्मेशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज स्मोक पॉइंट। सो द सैचुरेटेड फैट्स हैव हाई स्मोक पॉइंट, सो बेटर है फ्राइंग अच्छी होगी, कोई भी हम कुकिंग करेंगे अच्छी होगी, एंड दे आर वेरी स्टेबल बिकॉज देयर इज नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो इनका एलिफेटिक टेल है दैट कंटेन नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनकी जो लाइफ है सेल्फ लाइफ इज लॉन्ग सेल्फ लाइफ एंड डू नॉट वेंसेट इजली, और जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल एंड पाम ऑयल कंटेन्स ए लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट। कौन कौन से 3 ऑयल बताए मैं, एक तो पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, दे हैव प्लेंटी ऑफ सैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट का क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सैचुरेटेड फैट, इट रेजिस योर टोटल कोलेस्ट्रॉल। सो क्या है कि व्हाट इज द रूल, ट्राई टू कीप सैचुरेटेड फैट एट लेस देन 10%। एग्जाम्पल है इसका स्टेरिक एसिड। फैट्स कहाँ मिलेंगे, जितने भी एनिमल फैट है, जैसे मीट में जो फैट होगा दैट इज सैचुरेटेड फैट, मिल्क मीट में, मिल्क में, बटर में जो एनिमल ओरिजिन के फैट्स होंगे, एनिमल ओरिजिन के जो लिपिड्स होंगे जिसको हम फैट्स बोलेंगे, जो एनिमल ओरिजिन के लिपिड्स दैट इज कॉल्ड फैट्स सच एज मीट, मिल्क, बटर, क्रीम, चीज एंड बेक्ड गुड्स। बेक्ड गुड्स मीन्स बिस्कुट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ये इनमें होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। और इसमें ट्रांस फैट्स भी होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, तो वो जो प्रोसेसिंग होती है उससे वो ट्रांस फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं। सो द बेक्ड गुड्स, बिस्कुट, पेस्ट्रीज, केक्स, दे आल्सो हैव हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, hence should be consumed in less amount because they increases total cholesterol level and they causes heart disease. Same. The second are unsaturated fats. Unsaturated fats means those fats which contain unsaturated fatty acids and these fatty acids contain 1 or 2 carbon carbon double bonds. So what are the types of unsaturated fatty acids? Unsaturated fatty acids are of 2 types. Mono unsaturated fatty acids which are called MUFA, mono unsaturated fatty acids have carbon carbon double bond only one and they are more stable as compared to
more stable as compared to polyunsaturated fatty acids. In polyunsaturated fatty acids, yani which are known abbreviated as PUFA, they have 2 or more carbon-carbon double bond in their aliphatic tail. And what is the disadvantage of polyunsaturated fatty acids? They tend to oxidize more readily, more easily, and prone to auto-oxidation when comes in contact with air. And इस ऑक्सीडेशन से क्या होगा? There will be spillage, and this is called rancidification. Polyunsaturated fatty acids tend to spoil more readily on the when they come contact in the air. मीन्स ऑक्सीडेशन से कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं, ऐसे टॉक्सिक केमिकल बनते हैं, जैसे कि ये जो हमारा फैट्स है, ये बिल्कुल खराब हो जाता है, बदबू आने लगती है, इसमें विशेष स्मेल डेवलप हो जाती है और इसको यूज करने के लायक नहीं रहता। तो जिस ऑयल में पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे या पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होगा, जो भी होगा, वो क्या है कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेटर है। जैसे जितने भी हमारे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, they provide health to us and they are very useful to our body. What they tend to spoil is more readily, खराब भी जल्दी होते हैं। सो इसलिए इनको बहुत ही केयर के साथ रखा जाता है, हमारी आयल्स और इनको आयल्स को। एंड दे आर वेजिटेबल आयल, जनरली वेजिटेबल आयल है विच कंटेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनको कैसे रखना चाहिए? लाइट, डायरेक्ट सनलाइट और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा और एयर का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ये इसमें ऑक्सीडेशन या रेसिडिफिकेशन या स्पाइस ज़्यादा होगी। तो जो हमारा आयल है, इसमें कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी आयल है, इसको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, अभी फ्रॉम द लाइट यानी डार्क में रखना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और लो टेम्परेचर पे ठंडी जगह पे रखना चाहिए। ठंडी जगह पे रखना चाहिए, लाइट से दूर रखना चाहिए और अंधेरे में रखना चाहिए जहां लाइट ना पहुंचे, और लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा तेल खराब नहीं होगा। अगर हम किसी दुकान पे गए हैं और हमने देखा कि वहां पे जो कोई भी आयल हो, चाहे हमारा पता चला वो हमारी लाइट में रखा हुआ है, ग्रीन कलर्ड बोतल में होना चाहिए, लाइट में एक्सपोजर हो रहा है, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है और ये टाइट कंटेनर में नहीं है, तो उसकी जो भी एक्सपायरी डेट होगी वो समझ लीजिए एक्सपायरी हो चुका, उसका ऑक्सीडेशन हो चुका, रेसिडिफिकेशन उसमें हो गया होगा, उसमें पर्टिकुलर स्मेल डेवलप हो चुकी होगी। तो ऐसे तेल को चाहे भले ही एक्सपायर ना हुआ हो, यदि वो उसका दुकान के अंदर, शॉप के अंदर ठीक से रखा नहीं है, तो उसको परचेस ना करें, उसको लाने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। अनसैचुरेटेड फैट्स और यूफा, ये कितने टाइप का हुआ? तो हमने बताया कि ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम अरेंजमेंट। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है होता है, जैसे हमारी ये CH3, ये सेम साइड में है, सेम साइड, तो ये क्या होगा? सिस फैट और सिस अनसैचुरेटेड फैट होगा। सिस अनसैचुरेटेड फैट और सिस फैट, क्योंकि इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसा है? सिस डबल बॉन्ड। और ट्रांस फैटी एसिड और ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एग्जाम्पल है बेसेनिक एसिड, बिकॉज ट्रांस फैट्स आर मोर लीनियर। कैसे होंगे? लीनियर होंगे। एंड दे क्रिस्टलाइज मोर इजिली, allowing them to be solid rather than liquid at room temperature। इसलिए ये सॉलिड होते हैं, क्योंकि जहाँ भी ये ट्रांस फैट होते हैं, इनका मॉलिक्यूल कैसा होता है? फ्लेक्सिबल नहीं होता, लीनियर होता है, सो ये सॉलिड होते हैं। जो ट्रांस फैट है हमारे, ये ऐसे बनते नहीं है। ये कैसे बनेंगे? नेचुरली नॉट अकर इन नेचर। तो नेचुरल जो हमारे आयल्स हैं, जो सीड आयल्स हैं, उनमें ये नहीं होते हैं। कैसे बनेंगे? जब तक हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे इसमें, तब तक ये बनेंगे नहीं। जैसे अगर हम हीट करें किसी भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट को, जब हम हीट करेंगे तो उसको हीटिंग से क्या होगा? जो उसमें सिस बॉन्ड होते हैं, नॉर्मली सिस बॉन्ड होते हैं, वो क्या में चेंज हो जाएंगे? ट्रांस वाले फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब डिफरेंस इन सिस एंड ट्रांस फैट में क्या डिफरेंस है दोनों में? सिस फैट एंड ट्रांस फैट। सिस फैट मीन्स एनी आयल, वेजिटेबल आयल विच है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उसमें क्या है? सारे बॉन्ड
कैसे होंगे? सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक ही सेम साइड में होगी। तो सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स क्या है? जियोमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम around a double bond in the carbon chain. In cis fat, hydrogen atoms are on the same side of the double bond, creating a kink or bend in the molecule, while in trans fat, the hydrogen atoms are on opposite side, resulting in straight or more linear molecules. And this structural difference causes cis fat to be liquid at room temperature due to looser packing. Cis fat have looser packing because of they are flexible and they are liquid at room Now temperature. you can see in this picture all the bent molecule are cis molecule. Come on, trans fat. With this introduction, we come on trans fat. Trans fats have been banned in many countries, and dietary intake should be zero or not possible than less than 1% of the total calorie intake. Unhealthy unsaturated fatty acids क्या है? ट्रांस फैट अगर हम डिफाइन करें इसको, इफ यू डिफाइन ट्रांस फैट देन व्हाट आर ट्रांस फैट? दे आर अनहेल्दी unsaturated fatty acids containing triesters of glycerol or triglycerides or fats with hydrogen atom on opposite side of the double carbon carbon bond in aliphatic chain, which may be alkyl or alkene. On the basis of occurrence not commonly found in nature, होता क्या है कि कुछ रूमिनेट्स एनिमल्स के जीआईटी में क्या होगा कि ये जो ट्रांस फैट क्रिएट होता है, कैसे होगा? वहाँ एक जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो सिस वाले होते हैं, वो क्या है, उनके लिए टॉक्सिक होते हैं। तो उसमें एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की वजह से ये क्या चेंज हो जाते हैं, किसमें? ट्रांस फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं इन द रूमिनेंट एनिमल्स। दैट इज भाई इनके मिल्क में और मीट में और जो भी इनके प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये ट्रांस फैट्स या ट्रांस फैटी एसिड पाए जाते हैं। सो इन द मिल्क चीज बटर में कितना परसेंट होगा? 3% होगा। तो इन नेचुरल प्रोडक्ट इट इज इन लो क्वांटिटी, हेंस नॉट ऑफ मेजर कंसर्न, एंड दीज आर कंजुगेटेड लिनोलेक एसिड एंड बेसेनिक एसिड। अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द नेचुरली अकरिंग trans fatty acids, so these are conjugated linoleic acid and becenic acid are naturally occurring trans fatty acids. They arise from the action of bacteria in the lumen. Polyunsaturated fats are toxic to the lumen based bacteria which detoxify the fats by changing some cis double bonds to trans double bonds. So conjugated linoleic acid is known for its anti-cancer properties. Conjugated linoleic acid is known for, जो ये पाया जाता है ना ट्रांस फैटी एसिड होता है, conjugated linoleic acid और बेसेनिक एसिड, जो conjugated linoleic acid है, it is known for its anti-cancer properties and reduces the risk of cardiovascular disease and help and fight inflammation. ये एक ऐसा एग्जाम्पल है CLA। जितने भी ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, इसके अलावा जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं उसमें कंजुगेटेड लिनोलेइक एसिड को छोड़ के बाकी सबके सब हार्मफुल होते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, दिस इज एंटी कैंसर एंड दिस reduces the risk of cardiovascular disease. Now artificial occurring trans fatty acids और trans fat, तो ये हमेशा इनको कुछ देर आर सम एक्सेप्शंस विच हैव टोल्ड यू, सो दे आर ऑलवेज ऑलमोस्ट मेड बाय सम ह्यूमन प्रोसेस बाय द पार्शियल हाइड्रोजनेसिस। दो टाइप से ये बनाए जाते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, एंड व्हेन पार्शियल हाइड्रोजनेशन इज डन द सिस फैट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट एंड दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। And cis and trans
जो बॉन्ड्स हैं और जो फैट्स हैं या फैटी एसिड्स हैं, दे आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. Some cis carbon double bonds are converted into trans carbon double bond in the process of partial hydrogenation. And elatic acid is main trans unsaturated fatty acids often found in partially hydrogenated vegetable oils. So it is the elatic acid. Elatic acid is main trans unsaturated fatty acids which is found in partially hydrogenated vegetable oil. तो which acid now तो पहला प्रोसीजर हमने बताया जिससे कि ट्रांस फैट पैदा होता है, दैट वाज पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. इन वेजिटेबल ऑयल देयर इज ए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच हैव all the carbon double bonds, cis double bond in the cis form. What when we perform partial hydrogenation, then there is a conversion of cis carbon double bond into trans carbon double bond, and there is a formation of trans fatty acid by partial hydrogenation of the vegetable oil. And the second तरीका thermal isomerization. When heated or cooked, some unsaturated fats changes from their normal geometry to trans. नॉर्मल ज्योमेट्री क्या होती है? सिस ज्योमेट्री होती है. नॉर्मल ज्योमेट्री है सिस, इट इज ट्रांस, इट इज चेंजिंग इनटू ट्रांस. व्हेन एनी cis fat or unsaturated fat is heated, then normal geometry changes to trans and the rate of isomerization is accepted by the accelerated by the free radicals. Hence product made from fats, that is healthy vegetable oil which have cis unsaturated fatty acids, when repeatedly heated have only trans fat. उनमें जो बचता है वो केवल बार बार जब हम उसको गर्म करते हैं रिपीटेडली हीटेड, देन जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है जिसमें सारे सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांस बिकॉज बाय हीटिंग all cis converted into trans form, and our cis fat is converted into trans fat. Hence used fat is only trans fat and nothing. अगर बार बार कोई उसमें समोसा बना रहा है, बार बार कोई हलवाई उसमें पूड़ा सेक रहा है, बार बार उसको गर्म कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो हमारा सिस वाला है, जो हमारा हेल्दी फैट है, वो हमारा ट्रांस फैट में चेंज हो जाता है. तो इसलिए हमको कोई भी चीज़ खाने से पहले सोचना चाहिए. अब ये एक हमारी स्ट्रक्चर है, दिस इज सिस डबल बॉन्ड. सिस डबल बॉन्ड में ये देख रहे हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड में है. एंड दिस इज ट्रांस डबल बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर है किसी फैटी एसिड या किसी फैट की, उसमें देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ. Now this we will is discuss some food which some contain food that contain trans fat और processed trans fat. ये किस में होगा? मेनली ये जो होते हैं प्रोसेस्ड फूड में होंगी. फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड, दे अकर इन फास्ट फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड. दे आर मेन सोर्सेस ऑफ ट्रांस फैट. अब जैसे कौन से आइटम है, जैसे बेक्ड गुड्स हैं, जैसे लाइक केक्स, कुकीज, क्रैकर्स, पाइज एंड बिस्कुट्स एंड सिनामॉन रोल्स एंड डॉट नट्स. अब इसमें जो हमारी पाइस है, इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उसमें मैदा भी होती है, इसमें प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं क्योंकि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वी यूज प्रिजर्वेटिव विच आर कार्सिनोजेनिक एंड विच में प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. मैदा क्या है? मैदा जो हम यूज करते हैं उसमें क्या है, वो उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत जल्दी शुगर में चेंज होती है, बहुत रैपिड. शुगर जल्दी हमारी बॉडी में बनेगी तो क्या हुआ? शुगर इज कन्वर्टेड इनटू फैट. Sugar is converted into fat which is deposited in our liver, and excess sugar increases our cholesterol. So and all these items, baked goods, all these contains trans fat. although लेबल पे कुछ भी लगा हो, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट लगा हो, तो उसमें ट्रांस फैट होते हैं. ट्रांस फैट अगर 0.5% से कम है तो उसको हम नील ट्रांस फैट लिख सकते हैं, ये पॉलिसी है. तो लेबल पढ़ेंगे या किसी में ट्रांस फैट लेस देन 0.1% लिखा हो तो ट्रांस फैट होते हैं ये. और ये ट्रांस फैट क्या करेंगे, कितना नुकसान करेंगे, वी विल सी.
लेटर ऑन। नाउ जो फ्रोजन फूड्स है सच एज फ्रोजन पिज्जा, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न एंड अदर डिजर्ट्स, पाई इज ए डिजर्ट। The fried foods include French fries, potato chips, Maggi, nuts, dog nuts या डोनट्स कहते हैं, एंड फ्राइड चिकन। तो हम लोग मॉल जाते हैं, मॉल मॉल में खरीदते हैं क्या, फ्राइड चिकन यूज करते हैं, कहीं से भी फ्राइड चिकन ले आते हैं। तो फ्राइड चिकन इज ए सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स विच आर नॉट हेल्दी फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, and we will see later what injuries are done by trans fat and certain speeds such as एक हमारे एक डॉक्टर हैं बहुत ही जानने वाले, वो अपने बच्चे को मॉल ले जाते हैं, दो डॉक्टर तो हमने देखे जो वहाँ पे उसको फ्राइड चिकन खिलाते हैं, बहुत सारे ये जो जंक फूड फास्ट फूड ये खिलाते हैं। मुझे लगता है कि देयर इज ए लैक ऑफ नॉलेज। अगर लैक ऑफ नॉलेज नहीं होती कि व्हाट हार्म इज डन बाय द ट्रांस फैट, तो वो कभी भी अपने बच्चों को मॉल ले जाके उनको मौत के मुंह में नहीं ढकेलते। तो बहुत बड़े बड़े लिखे लोगों में भी लैक ऑफ नॉलेज है, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर, दे डू नॉट नो अबाउट द ट्रांस फैट। एंड द नेक्स्ट इज सर्टेन फूड सच एज स्टिक मार्गरीन एंड वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स। वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स क्या है, जो वेजिटेबल ऑयल उसको हाइड्रोजनेशन से जो हम डालडा घी बनाते हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेबल शॉर्टनिंग। एंड नॉन डेयरी कॉफी एंड क्रीमर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट्स। ये किस में होते हैं जो हम बता चुके हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ नेचुरली अकरिंग ट्रांस फैट ये होते हैं मीट में होते हैं, मिल्क में होते हैं, एज गट ऑफ सम एनिमल हैव ट्रांस फैट्स जो रूमिनेंट्स हैं, but there is no major problem, and trans fats are also present in the breast milk, so they occur in low quantity. If any of these things, suppose meat or milk is taken in high amount, तो जो उनकी लो परसेंटेज है ट्रांस फैट की वो हाई में चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी में नुकसान करेंगे। these are the dog nuts or donuts, you can see this is, they have a plenty of ट्रांस फैट। पोटैटो चिप्स जो बच्चे लोग बड़े प्रेम से खाते हैं, माँ बाप पेरेंट्स उनको ला के देते हैं, धीरे धीरे ये ट्रांस फैट उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, धीरे धीरे लॉस करता है, और वो जब 28 ईयर से होते हैं अर्ली एज पे उनको हार्ट अटैक आता है, तो समझ में आता है फिर कैसे हार्ट अटैक हो गया। समोसा सारे लोग बड़े प्रेम से खाते हैं समोसा, इसकी जो ऊपर की कवरिंग है समोसा की, ये क्या है, द अपर कवरिंग या अपर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मैदा एंड दे कंटेन what potato inside, and this is fried trans fat। the fats which contain trans fatty acids, ऐसे फैट में सॉलिड फैट होते हैं, जो इसमें जिस फैट में ट्रांस फैट होंगे वो सॉलिड होंगे, ओडरलेस होंगे, है ना, इसीलिए इसमें, और ओडरलेस होने की वजह से हम ट्रांस फैट में ही किसी भी सेचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट में ही हम इसको फ्राई करते हैं, बिकॉज इनमें स्मेल ना आए, अच्छी स्मेल रहे, लोग इसको एक्सेप्ट करें। इसलिए समोसा, अंकल चिप्स, ये जितने भी ये पैक्ड फूड बनाए जाते हैं, ये हमारे सेचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट में ही बनाए जाते हैं। ये क्या है, दिस इज स्टिक मार्गरीन, जो आता है ये पैकेट में ब्रांड अमूल, ये मार्गरीन है स्टिक वाली, जो हम काट के अंडों के साथ या ब्रेड के साथ लगा लगा के खाते हैं। ये मार्गरीन इज फुल ऑफ ट्रांस फैट, इट इज फुल ऑफ ट्रांस फैट। एंड सिनामन रोल्स फुल ऑफ ट्रांस फैट एंड मैदा। मैदा क्या करेगी, शुगर बढ़ाएगी बहुत तेजी से बॉडी में, एंड कन्वर्टेड इनटू फैट एंड मे कॉज डायबिटीज। अगर डायबिटीज ऑलरेडी है तो ये क्या करेगी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, बहुत ही शुगर बढ़ी रहेगी, इंसुलिन निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगा। ये सारे के सारे हैं चॉकलेट्स एंड वेफर्स, शॉर्टनिंग ऑफ मार्गरीन, आइसक्रीम, बिस्कुट्स एंड कुकीज, केक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बर्गर्स, ब्रेड एंड बन्स, फ्रेंच फ्राइज, पेस्ट्रीज, पाइज, पाइज क्या है, समोसा लाइक आइटम, एंड पफ्स,
फ्राइड चिकन एंड पिज्जा। ये एक पाई का डायग्राम है। पाई क्या है? पाई इज ए बेक डिश कंसिस्टिंग ऑफ पेस्ट्री क्रस्ट। ये क्रस्ट है ऊपर का, जो इसमें फ्राई हुई है वो इसमें क्या है? ट्रांस फैट है। एनक्लोजिंग ए स्वीट और सेवरी फिलिंग सच एज फ्रूट, मीट, चॉकलेट और क्रस्ट, कस्टर्ड कुछ भी हो सकता है। एंड फ्राइज आर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड एंड आर सर्व्ड एज डिजर्ट्स। मेन कोर्सेस सर्व एज डिजर्ट और मेन कोर्सेस और स्नैक्स। एंड इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। इसके जो पाइस होती हैं, दे आर लाइक एप्पल पाई। इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसके ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, इंटरनल कंटेंट, दे आर एप्पल पाइप, pumpkin pipe, meat pipe and cream pipe. Now trans fats contained in some fats. Vegetable shortening 10 to 13% फैट है इसमें इन वेजिटेबल शॉर्टनिंग। स्टिक मार्गरीन में 6.2 से लेके 16.8% ट्रांस फैट है, ठीक है ना। बटर में 2 to 7% ट्रांस फैट है। मिल्क कंटेंस 0.1% ट्रांस फैट। ब्रेड एंड केक 0.1 to 10% ट्रांस फैट। ब्रेड एंड केक। कुकीज एंड क्रैकर्स 1 to 8% ट्रांस फैट। एनिमल फैट 0 to 5% ट्रांस फैट। टॉर्टिला चिप्स 5.8% ट्रांस फैट। स्वीट 0 to 7% ट्रांस फैट। ब्रेस्ट मिल्क ह्यूमन, माँ के दूध में कितना ट्रांस फैट होता है? 1 to 7%। इट डिपेंड्स अपॉन इनटेक ऑफ ट्रांस फैट बाय द मदर। यदि मदर ज़्यादा ट्रांस फैट ले रही है तो उसके मिल्क में ट्रांस फैट मात्रा ज़्यादा होगी। इट में रेंज फ्रॉम 1 to 7%। नाउ वी सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांस फैट। इट इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, तो दैट इज इंक्रीज्ड बाय ट्रांस फैट। एंड इट लोअर्स गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एचडीएल कहते हैं। अब इससे क्या हुआ? इट आल्सो इंक्रीजेस ट्राइग्लिसराइड्स। अगर हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो हमारी जो ट्राइग्लिसराइड है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ये इसे बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, बाई 73%। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि व्हेन अ पर्सन टेक्स ट्रांस फैट मील देन इट्स सीआरपी इंक्रीजेस 73%। इसका मतलब है अगर उसने जंक फूड लिया, पैक्ड फूड लिया, इस प्रकार के जो अभी फूड आइटम आपने बताए हैं, तो उसका जो सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन विल इंक्रीज 73%। कोलेस्टेरॉल एस्टर ट्रांसफर, जिसे कहते हैं सेट, इंक्रीज 28% आफ्टर ट्रांस फैट मील। एंड द रेशियो ऑफ एलडीएल एंड एचडीएल इंक्रीजेस। और ये जो रेशियो है इट इज इंडिकेटर या मार्कर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, सो इट इज इंक्रीजेस। एपोलाइपोप्रोटीन इंक्रीजेस। एपोलाइपोप्रोटीन ए एंड बी आल्सो इंक्रीजेस। एंड ट्रांस फैट, नेक्स्ट इसका क्या है? नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? ट्रांस फैट disturb the body's ability to metabolize essential fatty acids, hence change in composition of phospholipids of wall of arteries leading to increase of COD, coronary artery disease। यानी यदि आप ट्रांस फैट लेंगे तो जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं इनकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी। इससे जो आर्टरीज की वॉल में जो फॉस्फोलिपिड्स है उसका कंपोजिशन चेंज होगा, और इस वजह से आपको आर्टरीज की वॉल में फास्फोलिपिड कंपोजिशन चेंज होने की वजह से आपको जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसकी रिस्क बढ़ेगी। प्रमोट सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, ट्रांस फैट भी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। दैट इज भाई आपकी सीआरपी जो है वो कितनी हो जाएगी? एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एक्यूट फेट रिएक्टेंट। जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो सीआरपी बढ़ती है। जब हम ट्रांस फैट वाला मील कंज्यूम करते हैं तो हमारी सीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट पिक्स अप एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड टेक इट टू बैक टू लिवर, और लिवर में ले जाता है इसको। जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, उसको पिक करके लिवर में ले जाता है और हमें कहाँ बचाता है इससे? इट इज गुड फॉर एचडीएल, और गुड कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है। एचडीएल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज। Trans fat also causes liver dysfunction. Why? Interfering with delta 6
desaturase. There is an enzyme delta 6 desaturase. So trans fat interfere with this enzyme, and enzyme involved in converting essential fatty acid to arachidonic acid and prostaglandins, both of which are important to functioning of the cells. Yani our essential fatty acids is converted into arachidonic acid and prostaglandin with the help of enzyme which is known as delta 6 desaturase, and trans fat interfere with this enzyme. That is, they prevent the conversion of essential fatty acids to arachidonic fatty acid and prostaglandins, which are important for the functioning of cells. And trans fat also causes major depressive disorder. There was 48% higher risk of depression than those who did not eat trans fat. What was the mechanism? Mechanism was the substitution of docosahexaenoic acid with the increased level of trans fat in orbitofrontal cortex. और जब ये देखा गया कि जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके ब्रेन की जो ऑटोप्सी जो बॉडी में उनके ब्रेन की एनालिसिस की गई, तो देखा गया कि द पर्सन के ब्रेन में 60 to 32% लेस अमाउंट था डीएचए का. उनके ऑक्सीपिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स में डीएचए वाज फाउंड 17 to 32% less. Because of this, they committed suicide, and this DHA was replaced by trans fat. As you know, the orbitofrontal cortex control reward expectation and empathy, and all of which are reduced in depressive mood disorders. Now it also causes female ovulatory infertility. The female who took trans fat containing food items in a study, they have 73% increased risk of female ovulatory infertility. And the taking of trans fat rich food items also aggravate. और ये भी देखा गया है कि एक्ने बल्गेरियस जो कि टीनेजर्स में होता है फ्रॉम 13 to 30 ईयर्स से 13 to 25 ईयर्स ओल्ड टीनेजर्स में, इट इज कॉमन इन एक्ने बल्गेरियस. इसमें फेस में एसिम्प्टोमेटिक रीजंस होते हैं बीच में कंटेंट पस. एंड इफ ट्रांस फैट्स आर टेकन अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट विच इज रिच इन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स. So saturated fats, trans fats, milk and dairy products and carbohydrates high glycemic, they increase acne vulgaris. They should be avoided. And it was seen that omega-3 fatty acid rich food reduces acne. यदि आपको अपने एक्ने कम करने हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच लेने होंगे, और जिसमें ट्रांस फैट होगा उसको कट करना होगा. LDL and triglycerides causes fatty deposits within the arteries, which when tear or rupture, a blood clot may form and block blood flow to a part of your heart, causing a heart attack, or to a part of your brain, causing a stroke. तो जैसा कि पहले बताया कि ये जो आर्टरी हैं इनकी वॉल में क्या जम जाता है, ये डिपोजिशन हो जाता है, ये प्लाक बन जाती है. किसकी बनती है प्लाक? ये प्लाक बनती है एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स की. ये किससे बढ़ते हैं? ये ट्रांस फैट से बढ़ते हैं. तो ये जो स्पेस है इनके बीच का स्पेस, ये बिकम्स नैरो एंड दिस बॉल बिकम्स हार्डर. सो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से जब ये रप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ब्लड क्लॉट. यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाएगा, पूरी की पूरी लिवर ब्लॉक हो जाएगी. इससे क्या होगा? हार्ट अटैक होगा. एंड देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. क्यों? बिकॉज ट्रांस फैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल. इसमें जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है बॉडी का उसे नेगेटिवली अफेक्ट करता है, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज.
And what are the other health concern? Cancers and also associated with obesity. दूसरा है कि इट डिस्टर्ब द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन पॉली अनसिटेड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, उनके मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देता, उसमें डिस्टर्ब करता है ट्रांस फैट। जो आपने अच्छा फैट लिया है उसके मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सो ट्रांस फैट काजेस मेनी प्रॉब्लम्स। ये देखा गया है कि यदि हम जो टोटल एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी की अगर 5% हमने रिप्लेस कर दी विद replacing a 5% food energy from saturated fat with non-trans unsaturated fat reduces the risk of CAD by 43%. जो लोग सेचुरेटेड फैट ले रहे थे उनकी केवल 5% हमने नॉन ट्रांस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दिया, यानी उनको हमने सिस फैट दिया, यानी ऐसा फैट दिया जो जिसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड थे, जिसमें कि ट्रांस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं थे। यानी जो नॉन ट्रांस अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आर टू टाइप, एक तो सिस टाइप, एक तो ट्रांस टाइप, दूसरा सिस टाइप या नॉन ट्रांस टाइप। तो नॉन ट्रांस टाइप अनसेचुरेटेड फैट्स दिए उनको खाने को, तो क्या हुआ कि उनकी जो सीएडी की जो रिस्क है वो 43% कम हुई। रिप्लेसिंग 2% ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ट्रांस फैट विद नॉन ट्रांस फैट मोर देन हाफ द रिस्क ऑफ सीएडी। तो जो लोग ट्रांस फैट ले रहे थे जब उनको नॉन ट्रांस फैट दिया गया तो उनकी रिस्क जो है वो 53% कम हुई। अब इफेक्ट ऑफ ट्रांस फैट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। फर्दर we have explained, we are revising here. This increase bad cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides. There is a atheroma formation in the body, all body arteries, hardening of arteries, reduced lumen of arteries and the blood flow जो स्पेस है वो रिड्यूस होगा एंड हाई ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, देयर मे बी कार्डियोमेगाली, हार्ट का साइज बढ़ेगा एंड कार्डियोमायोपैथी होगी। हेंस trans fat are not good for cardiovascular. If anyone consumes trans fat containing foods at the place of cis fat, yani polyunsaturated fat, then there is a 73% increased in coronary artery disease. Hence, trans fat should not be. तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? अब हम समराइज करते हैं। हमने पढ़ा अभी तक कि जो फैट्स हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड फैट्स और अनसेचुरेटेड फैट्स। अनसेचुरेटेड फैट दो टाइप के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अगर इसमें सेचुरेटेड फैट में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते ही नहीं। अनसेचुरेटेड फैट मोनो में क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। पॉली में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या तो 2 होंगे या मोर देन 2 होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये फैटी एसिड है, ये इसका कौन सा एंड है, मिथाइल एंड है, ये ओमेगा एंड है, और ये कौन सा एंड है, ये अल्फा एंड है, अल्फा एंड। दिस इज अल्फा एंड, दिस इज ओमेगा एंड और मिथाइल एंड। तो अब यहां से अगर कार्बन गिरेंगे 1 2 3, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कौन सा एसिड हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, अगर इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर ये हाइड्रोजन एक साइड में है तो ये क्या कहलाएगा, सिस डबल बॉन्ड। और अगर ये हाइड्रोजन एक साइड में इधर ना हो कि इसमें इधर है इसमें इधर, तो कहलाएगा ट्रांस डबल बॉन्ड। तो जिस फैटी एसिड में ये जो एलिफैटिक चैन है, ये एलिफैटिक चैन है, एलिफैटिक चैन में अगर सिस डबल बॉन्ड होंगे तो उसको कहेंगे सिस फैट, सिस अनसेचुरेटेड फैट।
जिसमें ट्रांस होंगे उसे ट्रांस फैट कहेंगे। ट्रांस फैट क्या नुकसान करता है हम आपको बता चुके। मेनली ये ट्रांस फैट क्या करेगा, हमारा एलडीएल बढ़ाएगा और हमारा एचडीएल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगा और बाकी जो हमने विच आई हैव डिस्कस्ड। सो इट विल बी बेटर कंप्लीटली स्टॉप टू टेक ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हमें बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सेचुरेटेड फैट या ऐसे आइल्स, ऐसे फूड जिसमें कि जो सेचुरेटेड फैट से बने हैं, जैसे पाम ऑयल से बने होते हैं ज़्यादातर। आज हमने बिस्कुट के पैकेट्स देखे, उनका लेवल देखा, तो दे आर मेड अप फ्रॉम पाम ऑयल, सेचुरेटेड फैट। इससे क्या बढ़ेगा, हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल In this, see the ingredient, there is a palm oil in the ingredient list. बढ़ेगा। और हमें क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, यानी हमारी जो धमनियां हैं उनकी अंदरूनी दीवार पे हमारी ये चर्बी जम जाएगी, उनके बीच का जो ब्लड बहने का जो स्पेस है यानी ल्यूमन नैरो होगी, और उससे क्या होगा, कभी भी अगर वो रप्चर होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से तो हीट, तो हमें क्या होगा, स्ट्रोक्स होगा या हार्ट अटैक होगा या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा। तो वी शुड अवॉइड intake of those food items which contain trans fat. So this is all, and this is all about food which contain trans fat. This is all about what harm is caused by trans fat, and what is the harmful effect trans fat on our body, on our health. So if the content of this video you like, is useful to you, if you think this is useful, then please share this video and like this video and subscribe this video, subscribe this channel.